ਹੈਲੋ एवरीवन ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 43 ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਕਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਉੱਪਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟ ਉੱਪਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਈ ਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ www.gilsmentortest.com ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, P&L ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 1 ਈਅਰ ਬਾਈ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ 1 ਈਅਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ P&L ਅਕਾਊਂਟ 1 ਈਅਰ ਲਈ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕੰਸੈਪਟ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਕੰਸੈਪਟ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਸੈਪਟ, ਕੋਸਟ ਕੰਸੈਪਟ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ 1 ਈਅਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਸੈਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, P&L ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਕਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਸੋਲਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਫ ਦਾ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਇਫ ਦਾ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਵੈਲਿਡ। ਜੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗਸ ਟਰੂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਦੱਸੋ। all prepared assets would be completely written off immediately, total contribute capital and retained earnings would remain unchanged, intangible assets would continue to be carried at amortized historical cost, land held as the investment would be value at realizable value। ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਲੈਂਡ ਹੈਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੈਲਿਊ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੋਸਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज नॉट इन कॉन्सेंस विद द कन्वेंशन ऑफ कंजरवेटिज्म। दसो ये किहड़ी प्रैक्टिस है जो कन्वेंशन ऑफ कंजरवेटिज्म नाल मैच नहीं करती? दसो। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर टैक्स। दसो। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ
बी ऑप्शन क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦੇ, ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਟਰਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है रिकॉर्डिंग ऑफ द फिक्स एसेट एट कॉस्ट इंश्योर्स एडहरेंस ऑफ, दसो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, बोथ ए एंड बी। ਇਹਦਾ ਆंसर आ जाएगा सी ऑप्शन कोस्ट कंसेप्ट, ठीक है ना फ्रेंड्स। ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਆਪਾਂ ਕੋਸਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤੇ ਕੋਸਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਦੇ ਲਈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਟ ਕੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੋਸਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ਜਿਹੜਾ ट्रेड डिस्काउंट ਆਪਾਂ ਅਲਾउड ਕਰਦੇ ਹਾਂ सेल ऑफ गुड्स ਲਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਸੇਲ ਬੁੱਕ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਜਰਨਲ, ਇਨ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਬੁੱਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਇਸ 'ਚੋਂ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਬੁੱਕ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਜਰਨਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ, ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਆंसर ਆਏਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਲ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦਾ, ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੈਸ਼ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦਾ, ठीक है। कैश डिस्काउंट आएगा कित्थे आएगा, ये आएगा कैश बुक विच, कैश बुक च आएगा। दो तरह नाल आ सकदा कैश बुक च, ठीक है, कैश डिस्काउंट अलाउड ते कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना फ्रेंड्स। जे रिसिप्ट साइड है तो अलाउड हो जाएगा, जे पेमेंट साइड है तो रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक गल होर याद रख लियो, कैश बुक विच ਜਿਹੜਾ डिस्काउंट है मेरा कैश बुक 'ਚ ਜਿਹੜਾ कैश डिस्काउंट है वो हमेशा टोटल होएगा, ठीक है, उसका कभी भी कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, दोनों साइड। अगला क्वेश्चन है इफ ऑफिस इक्विपमेंट इज परचेज फॉर कैश वट इफेक्ट विल दिस ट्रांजैक्शंस हैव ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। दसो की इफेक्ट पेगा इस ट्रांजैक्शन नाल मेरे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी उपर, दसो। देयर इज अ नो चेंज इन द एसेट्स लायबिलिटीज ओनर्स इक्विटी, there is a decrease in assets, increase in liability, no change in owner equity. There is a decrease in assets, no change in liability, decrease in owner's equity. There is an increase in assets, decrease in liability, no change in owner equity। दसो किहड़ा ऑप्शन ठीक होएगा इस चों। इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, देयर इज अ नो चेंज इन द एसेट्स लायबिलिटी और द ओनर्स इक्विटी, ठीक है ना। अपन ने ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिया, यानी कोई फिक्स एसेट खरीद लिया, ठीक है तो एसेट ही है। कैश ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ मैंने, कैश ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ना, कैश ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ मैंने परचेज किया ऑफिस इक्विपमेंट, यानी कि एक पासे प्लस होया एक पासे माइनस होया, कैंसल ही हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं पेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ओनर्स इक्विटी इन अ बिजनेस इज नॉट अफेक्टेड बाय, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨਰਸ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਦੱਸੋ। ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦ ਟੋਟਲ ਐਸੈਟਸ ਹੈਲਡ ਇਨ ਕੈਸ਼, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੇਡ ਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾय द ओनर, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड टू स्टॉक होल्डर्स।
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ए ऑप्शन। ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਐਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਓਨਰਸ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੇਡ ਇਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਈ ਦਾ ਓਨਰ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ ਮੇਰੀ ਓਨਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉੱਪਰ। ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਆਫ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਫਰਕ। ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਪੇਡ ਟੂ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਐਸਟ ਇਨ ਹੈਲਡ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਮੇਰਾ ਓਨਰਸ ਇਕੁਇਟੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੈਨ ਅ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਇਜ਼ ਓਬਟੇਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਦ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਜ਼। ਦੱਸੋ, मैंने कोई फिक्स एसेट हैज़ अ गिफ्ट विच दिता मैंने, ठीक है, तो वह मैं कित्थे पावांगा? दसो मैं किस च आएगा, किनू क्रेडिट करांगा मैं? इस मतलब अकाउंट टू बी क्रेडिट इज किनू क्रेडिट करांगा मैं? गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डोनर अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। दसो, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कोई भी मैं लॉन्ग टर्म च कोई भी चीज़ मैं देख रही हूँ, कोई फिक्स एसेट मेरा कोई गिफ्ट च आया है वो कित्थे आ जाता होंगे? कैपिटल रिजर्व विच। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इफ द ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ द बिजनेस इज अंडर कास्ट। ठीक है, जे मेरी ओपनिंग इन्वेंटरी अंडर कास्ट विच है, ठीक है, घट है, मतलब अंडर कास्ट मतलब जिन्नी होनी चाहिए उहदे नालों घट है मेरी। ठीक है, मतलब कि ये कोई एरर है, एरर है ना, तो मतलब कि कोई एरर किया मैंने, जिन्ना होना चाहिए उस मैं घट टाइम दिखा रहा, मैं अंडर कास्ट हो रही है, तो इस की इफैक्ट पेगा? दसो मैनू, ग्रोस प्रॉफिट बढ़ जाएगा या तो नैट प्रॉफिट घट जाएगा? जे ग्रोस प्रॉफिट घट जाएगा तो नैट प्रॉफिट भी घट जाएगा। जे वैल्यू ऑफ एसेट च इनक्रीज हो जाएगा या ग्रोस प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो नैट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। दसो किहड़ा ऑप्शन ठीक होएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, इनक्रीज इन द ग्रोस प्रॉफिट एंड द एज वैल एज नैट प्रॉफिट। जे मेरी ओपनिंग इन्वेंटरी घट गई तो मेरा ग्रोस प्रॉफिट बढ़ जाना है। जे तुमने मेरा देखा हो ग्रोस प्रॉफिट किमें कड्डी दा है, तुहानू मेरा कंसैप्ट पढ़िया हो, तुहानू पता ही होएगा कि जे ओपनिंग इन्वेंटरी की अमाउंट घट है तो वो जिन्नी अमाउंट घट है वो कित्थे जाके जुड़ जाएगी? वो मेरी सारी ग्रोस प्रॉफिट जाके जुड़ जाएगी, जो निकलेगा मेरा। ठीक है ना, सेल्स चो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करांगा तो मेरी ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगी। ठीक है, तो जिन्नी मेरी अमाउंट आएगी ग्रोस प्रॉफिट की वो हमेशा मेरे नैट प्रॉफिट जो इफेक्ट करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस किहड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप नहीं मान सकते? दसो, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड डिबेंचर्स, एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेल टैक्स पेड इन कनेक्शन विद द परचेस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, स्मॉल एक्सपेंडिचर ऑन अ लॉन्ग लिव्ड एसेट सच एज द ₹20 फॉर पेपर वेट। दसो इस किहड़ा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं नहीं ट्रीट कर सकता? दसो, इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सेल टैक्स पेड इन द कनेक्शन विद द परचेस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, ये मेरा कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, बाकी तीन जेडे हैं मेरे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाल रिलेटेड है। जे मैं कोई इंटरस्ट कर रहा लोन के डिबेंचर दे पे कर रहे हैं, जे मैं कोई एनुअल फायर का इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, ठीक है, जे मैं कोई स्मॉल एक्सपेंडिचर ऑन लॉन्ग लीव एसेट उपर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पेपर वेट ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाइल डिडक्टिंग इनकम टैक्स फ्रॉम द ग्रोस पे ऑफ द इंप्लॉय, जे मैं कोई इनकम टैक्स मेरी डिडक्ट हो रही है किसी इंप्लॉय की पे विचों, तो इंप्लॉयर नू आपां उस इंप्लॉयर नू आपां की मन्नांगे? मतलब किस तरह लैके चलांगे उसनू की मन्निया जाएगा? कट्टेगा तो इंप्लॉयर नहीं ना, कट्टेगा कौन? इंप्लॉयर ही कट्टेगा इसकी इनकम टैक्स की जितनी भी अमाउंट बनती है वो पे चो कट लेगा। तो इंप्लॉयर नू हैज़ आपां की लैके चलांगे? उसकी की आइडेंटिटी है इस बिहाव ते, इस स्टेटमेंट बिहाव ते उस इंप्लॉयर की आइडेंटिटी बैठेगी? दसो, फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ली इंप्लॉयड की कैसे किमें बैठेगा वो? मतलब कि जोड़ा कोई डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, जे वो टैक्स कलैक्ट कर रहे हैं किसी इंप्लॉय तो करना है, मगर वो आप तो कर नहीं रहा, इंप्लॉयर द्वारा करवा रहे हैं। ठीक है, जे इंप्लॉयर तो करवा रहा है तो इनकम टैक्स लिए इंप्लॉयर की है? दसो मैनू, एजेंट फॉर ऑफिस ऑन कंपनी, पे टैक्स कलैक्शन एजेंट, अनपेड टैक्स कलैक्शन एजेंट, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन।
इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, पे टैक्स कलैक्शन एजेंट। ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? पे टैक्स कलैक्शन एजेंट। इनकम टैक्स ਦੇ नज़र ਵਿੱਚੋਂ हमेशा पे टैक्स कलैक्शन एजेंट है ਜਿਹੜਾ इंप्लॉयर है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है द इनक्रीज इन द मटीरियल इन्वेंटरी मीन, जे कोई मटीरियल इन्वेंटरी च इंक्रीज हो जाए तो की मतलब होएगा? द एंडिंग इन्वेंटरी इज ग्रेटर दैन ओपनिंग इन्वेंटरी, द एंडिंग इन्वेंटरी इज लेस दैन द ओपनिंग इन्वेंटरी, बोथ एंडिंग एंड ओपनिंग इन्वेंटरी आर इक्वल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दसो ਕਿਹੜਾ ऑप्शन ठीक होएगा इस चों? इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, द एंडिंग इन्वेंटरी इज ग्रेटर दैन ओपनिंग इन्वेंटरी। जे कोई इनक्रीज हो रहा मटीरियल में ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਂਡਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਓਪਨਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਾਲੋਂ। ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈंने ਉਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਆਇਆ ਪਲੱਸ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਮਾਈਨਸ ਉਸ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬੈਠੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਰੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਾਲੋਂ? ਓਪਨਿੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਾਲੋਂ। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आइटम्स यूज टू डिनोट द फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट। इचो केड़ा ऐसा कोई की नाम एक्सपेंस है कुछ भी है जिहड़ा फैक्ट्री ओवरहेड नाल नहीं रिलेट करता? दसो इचो कोई एक है, बाकी सारे करते हैं, एक नहीं करता। दसो फैक्ट्री बर्डन, फैक्ट्री एक्सपेंसिस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कन्वर्जन कोस्ट सॉरी। ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, फैक्ट्री बर्डन कोई ऐसा नहीं है एक्सपेंस जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड नाल रिलेट करके चले ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ डिनोट करा मैं उसनों यूज़ करा मैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड हैज़ द फॉलोज। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझाया मगर इस स्टेटमेंट कुछ अलग क्या गया। ठीक है, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਸਟ ਸ਼ੀਟ वाला कंसैप्ट पढ़िया तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਸਟ ऑफ गुड्स सोल्ड किवें निकलेगा। पहला ऑप्शन है कोस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एड ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स लैस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, cost of goods sold, cost of goods manufacturing less opening finished goods ਤੇ less closing finished goods inventory, cost of goods manufacturing less opening finished goods add closing finished goods inventory। D option cost of goods manufacturing add opening finished goods ਤੇ add closing finished goods inventory। ਦੱਸੋ ਜੇ ਮੈਂ cost of goods sold ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀ finished good ਦੇ ਹਿਸਾਬ से? ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ए ऑप्शन। ठीक है, ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਸ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੁੱਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਰੈਂड्स। अगला क्वेश्चन है द सुपरवाइजर सैलरी इज ट्रीटेड है। जी सुपरवाइजर सैलरी है उनमें किस तरह ट्रीट करांगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सॉरी उरे कॉस्ट आएगा इधर आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, केड़ा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है डैश इज द वेरीफेबल थ्रू इनवाइसिस एंड एग्रीमेंट्स। दसो इन्हां चों केड़ी कॉस्ट मेरी वेरीफेबल करेगी? किस द्वारा? इनवाइसिस एग्रीमेंट्स द्वारा। इन चों केड़ी कॉस्ट मैं वेरीफाई कर सकदा? किस द्वारा? इनवाइसिस एग्रीमेंट्स द्वारा मैं केड़ी कॉस्ट उरे मैं वेरीफेबल कर सकदा, यानी कि वेरीफाई कर सकदा। दसो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट। तुसीं ध्यान नाल ऑब्जर्व करो तो इसका आंसर बहुत आसान है। इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज वेरीफेबल थ्रू द इनवॉइसिस एंड एग्रीमेंट्स। ठीक है ना फ्रेंड्स। Which of the following loss is expected in manufacturing process and represent a necessary cost of presenting the marketing units? A option operating loss, abnormal loss, normal loss, extraordinary loss। ऐसे कोई लॉस जी मैंने एक्सपैक्टेड है मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसैस तो रिप्रजेंट करेगी एक तरह की नैसेसरी कोस्ट के हिसाब से। ठीक है, इन द मार्केटेबल यूनिट्स इन द सॉरी कोस्ट ऑफ प्रोसैसिंग दी मार्केटेबल यूनिट्स। दसो
मतलब कि ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕੋਸਟ। ਕਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੋਏਗੀ? ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੋਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋਰੀ ਲੋਸ। ਇਹਦਾ ਆंसर ਆਏਗਾ सी। ठीक है, नॉर्मल लॉस मैंने पता ही होंगे कितना तो मेरा एक्सपैक्टेड है। ठीक है ना, वो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसैस भी होएगा तो रिप्रजेंट करेगा नैसैसरी कोस्ट ऑफ प्रोसैसिंग दी मार्केटेबल यूनिट्स। ठीक है, द टर्म मिनीमम लैवल रिप्रजेंट, जो मिनीमम लैवल जो टर्म मैं तुहानूं दस्सिया सी वो की रिप्रजेंट करता दसो? द क्वांटिटी बिलो विच द स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट बी अलाउड टू फॉल। बी ऑप्शन, द क्वांटिटी बिलो विच द स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड बी अलाउड टू फॉल। C option, the estimated time period in number of days or in weeks or in months। D option, the lead time period in number of days or in weeks or in months। दसो किहड़ा ऑप्शन ठीक होएगा? तो मीनिमम लैवल दस्सिया सी ना, तो उरे तुसीं दस सकते हो। आसान ही है वैसे, थोड़ा ऑब्जर्व करो। इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, द क्वांटिटी बिलो विच द स्टॉक ऑफ एनी आइटम शुड नॉट अलाउड टू फॉल। मतलब कि इन्नी क्वांटिटी तो मेरे को होएगी होएगी, इस तो घट तो हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेक इवन पॉइंट इज डैट एट विच। मैं तुहानूं हले ब्रेक इवन पॉइंट कराया नहीं, मगर तुसीं पहले पढ़िया पे होना ब्रेक इवन पॉइंट। उस बिहाव ते मैं एक क्वेश्चन तुहाडे सामने लैके आया। दसो मैनूं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि ब्रेक इवन पॉइंट की हुंदा? दसो वो किहड़ा पॉइंट हुंदा जदों की हुंदा? दसो द लैवल ऑफ एक्टिविटी at which the business operates most economically, the level of the activity at which the business makes neither a profit nor a loss, the fixed costs are lowest, the variable cost per unit is minimized। ਇਹਦਾ ਕੀ ਆंसर ਹੋਏਗਾ? बी ऑप्शन, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा ओके उस वक्त मेरी की कहा जाएगा कि एक तरह का मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा इज। ਕਿਹੜਾ एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव डाटा का? दसो मैनू। प्रोडक्ट कॉस्ट, कस्टमर सैटिस्फैक्शन, नैट इनकम, इन्वेंटरी कॉस्ट। ਕਿਹੜਾ ऑप्शन ठीक होएगा इस चों? इसका आंसर होएगा बी ऑप्शन, कस्टमर सैटिस्फैक्शन एक तरह का मेरा क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट कॉस्ट, नेट इनकम ते इन्वेंटरी कॉस्ट क्वांटिटेटिव है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ। जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होंगी है टिपिकली कंसिस्ट ऑफ की होंगी है? डायरैक्ट मटीरियल, डायरैक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन एंड शिपिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, डायरैक्ट मटीरियल, डायरैक्ट लेबर, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। दसो जो तुहानूं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पढ़ी होवे तो मैं समझाई सी जदों, जो तुहानूं सुनिया होवे ध्यान नाल तो तुसीं मैनूं उरे दस सकदे हो ना। मैं कई बार तुहानूं रिपीट भी करा चुका। जो किसी को हले तां भी नहीं पता तां भी तुसीं इस क्वेश्चन का जो तुहानूं आंसर पता लगेगा तां भी तुहानूं पता लग जाएगा। ठीक है। इसका आंसर की होएगा? ए ऑप्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किहड़ी आ जाएगी मेरी? दसो जिस डायरैक्ट मटीरियल, डायरैक्ट लेबर ते मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, वो की हो जाएगी मेरी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगी। जो प्राइम कॉस्ट भी लिखा होंगे, प्राइम कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो भी उसका आंसर ए भी हो सकता सी। ठीक है, जो प्राइम कॉस्ट लिखा होंगे। डायरैक्ट मटीरियल, डायरैक्ट लेबर की होंगी है मेरी प्राइम कॉस्ट होंगी है, जो मैं टोटल कर दूँगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर दैट शुड बी टेकन इन टू अकाउंट फॉर फिक्सिंग रीऑर्डर लेवल। दसो इस किहड़ा फैक्टर मैं लवांगा जो मैंने रीऑर्डर लैवल कढ़ना होएगा? दसो एवरेज कंजम्पशन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एमरजेंसी लीड टाइम, डेंजर लैवल। जो तुहानूं मैं दस्सिया सी ना कि रीऑर्डर लैवल आपां किवें कड्ढी दा, तो तुसीं उरे तुहानूं पता होएगा हुण। उरे की आएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की होंगी एक तरह की मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी होंगी है। रीऑर्डर क्वांटिटी होंगी है ना, अपन रीऑर्डर लैवल कढ़ना है। ठीक है, कदों मेरा कदों किस टाइम पर मैं दोबारा रीऑर्डर करा, मेरे को कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि मैं रीऑर्डर करा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
23 dash is a part of cost production report that explain the cost incurred during the process। दसो quantity schedule cost accounting for as follows cost charged to the department none of the given option। इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन कोस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आज द लास्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इज रिस्पोंसिबल टू द अर्न दिस सेल्स रेवेन्यू। पिछले लैक्चर तो मैं एक बार कोस्ट सेंटर बारे पूछा सी उरे मैं तो की पूछ रहा सेल्स रेवेन्यू बारे दस रहा कौन रिस्पोंसिबल होंगे मेरे सेल्स रेवेन्यू अर्न करने में। दसो कोस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। इसका आंसर आ जाएगा रेवेन्यू सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका की आंसर आ जाएगा रेवेन्यू सेंटर, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अज लिए अपने 24 क्वेश्चन से आप कल जो लैक्चर आएगा उस आप कोस्ट अकाउंटिंग के नैक्सट कंसैप्ट देखांगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, सो अज आप एक रिविजन की है। इस मैं हमेशा 4 या 5 लैक्चर्स बाद पिछला जो मैं करा चुका उसकी रिविजन प्लस जो हूँ करा चुका वो मिक्स क्वेश्चन मैं लैंदा रहांगा। ठीक है, तो नाल जो आप कोई कंसैप्ट करते हैं नवा वो मैं नैक्सट लैक्चर में वो MCQs पूछ लैना तो ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सैक्शन में मैंने जरूर पूछो। ठीक है, तो सो जो तुम्हें लैक्चर अच्छा लग्या हो कृपा करके लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, लाइक तो शेयर जरूर करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो तुम्हें मेरी वीडियो चलाते हो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई हो तो मेरे वालों माफ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, हुण आपां कल मिलांगे। थैंक यू।